أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله عز وجل في مقام آخر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک، جو اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 3 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کی دعوت کا، ان کی تبلیغ کا ذکر کیا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، اور بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی دعوت پیش کی، انسانوں کو یہی پیغام دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ڈرانے والا کہ تاکہ میں تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈراؤں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات، جنات تیار کر رکھی ہیں۔ تو تمام کے تمام انبیاء ہی وہ نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی صفت ہے، یہی وصف ہے کہ آپ ڈرانے والے بھی تھے اور خوشخبری سنانے والے بھی۔ اور پھر اپنی قوم کو یہ کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ سے استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کی معافی مانگنا، نافرمانیوں کو ترک کر دینا، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کی طرف مائل ہو جانا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ توبہ ہے۔ تو فرمایا کہ استغفار کرو، معافی مانگو، بخشش طلب کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تو تمہیں فائدہ کیا ملے گا اگر تم استغفار کرو گے، معافی مانگ لو گے، توبہ کر لو گے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں متاع حسن عطا کرے گا، سامان، زندگی گزارنے کا بہترین سامان تمہیں نصیب ہوگا۔ دنیا کی زندگی کو قرآن مجید میں متاع غرور بھی کہا گیا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں فرمایا متاع حسن، یعنی اچھا سامان، کس کے لیے؟
یہ دنیا کی زندگی اچھی کس کے لیے ہوگی؟ فرمایا یمتعکم متاعا حسنا، جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور پھر دنیا کی زندگی، اچھی زندگی اس کو عطا کر دیتے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، ایک وقت تک، ایک وقت ہر انسان کا مقرر ہے، جب مدت پوری ہو جائے گی، انسان ایکسپائر ہو جائے گا، تو فرمایا کہ اس وقت تک تمہیں اگر اچھی زندگی چاہیے، اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو وہ اچھی زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہے، استغفار میں ہے، توبہ میں ہے، معافی مانگ لو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اچھی زندگی مل جائے گی۔ الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور فرمایا کہ جو تم میں سے زیادہ کرتا ہے، یعنی کچھ امور ایسے ہیں جو فرض ہیں جن کو کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی زیادہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے۔ کل ذی فضل، ہر زیادہ کام کرنے والے کو، زیادہ اعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا کریں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، تم نے توبہ اور استغفار والا راستہ اختیار نہ کیا، گناہوں کی معافی نہ مانگی، گناہوں کو چھوڑا نہیں، گناہوں کو ترک نہ کیا، نافرمانیوں میں لگے رہے، اللہ کی بغاوت میں لگے رہے، تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، توبہ اور استغفار نہ کیا، اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو میں ڈرتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب سے کہ جس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ نذیر ہیں انبیاء علیہ السلام، ڈرانے والے۔ اور میں اگر توبہ کر لو گے، معافی مانگ لو گے، دنیا بھی اچھی مل جائے گی، دنیا کی زندگی سعادت والی گزرے گی، اچھی زندگی بسر کرو گے اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن اگر تم نے اس بات کو قبول نہ کیا، استغفار نہ کیا، توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، کوئی تمہیں پرواہ نہ ہوئی، تمہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے توبہ اور استغفار سے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے نافرمانوں کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، یہ معافی مانگنے کا مہینہ تھا، استغفار کا مہینہ تھا، شاید ہم اس طرح سے معافی نہیں مانگ سکے، شاید ہم توبہ نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ہر انسان کی زندگی جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے اس کو مہلت دی گئی ہے کہ وہ توبہ کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اگر انسان گناہوں میں ملوث رہا، اس کے 30-40 سال کی زندگی گزر گئی، اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، کسی لمحہ میں، کسی وقت میں، کسی گھڑی میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور پھر اس کی زندگی سنور جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور سورہ نور میں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو استغفار کرو، توبہ کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں تو گناہوں کو چھوڑ کر توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنی ہو۔ اور پھر قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رجوع کرو اللہ کی طرف، پلٹ آؤ، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو نافرمانیوں کو۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ جب قرآن کی ایسی آیات پڑھی جائیں جس میں مومنین کا ذکر ہو، مسلمانوں کو خطاب ہو، تو اس وقت ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سے مخاطب ہیں۔ میں ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہوں، آپ لوگ، ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم مومن اور مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رجوع کر لو، توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، ایسی توبہ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ ملاوٹ والی چیز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آپ لوگ ملاوٹ والی چیز پسند نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین بھی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا توبۃ نصوحا، خالص توبہ کر لو، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے جلال اور عظمت کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے،
अल्लाह के अजाब से डरते हुए खालिस दिल से तौबा करो, तौबतन नसूहा, खालिस तौबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मिलेगा क्या? अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, गुनाह खत्म हो जाएंगे। अगर गुनाह बहुत ज्यादा है, इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। फरमाया तुम तौबा करो, रुजू करो, अल्लाह से माफी मांगो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारी सय्यिआत को, तुम्हारी लज़्ज़तों को, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देगा, खत्म कर दे। व युदखिलकुम जन्नातिन, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। तौबा और इस्तिग़फ़ार के रास्ते को इख्तियार कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें उन जन्नतों में दाखिल कर देगा। और फिर इस्तिग़फ़ार करने से, तौबा करने से इंसान को मिलता क्या है? कुरान मजीद की एक और आयत, फरमाया फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। फरमाया सूरह नूह की आयत है। सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को यही दावत दी, फरमाया फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अपने रब से माफी मांगो, तौबा करो, रुजू करो। खाते उसका हो, पीते उसका हो, उसने तुम्हें जिस्म दिया है, उसने तुम्हें जान दी है, उसने तुम्हें ताकत और पावर दी है, उसने तुम्हें जायदाद दी है, उसने तुम्हें माल, दौलत, नेमत, औलाद सब कुछ दिया है, फिर उसकी बगावत करते हुए शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? मैं फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से माफी मांग लो, तौबा कर लो। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। तुम्हारे आने में देर है, उसके माफ करने में देर नहीं है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, फिर आसमान से तुम्हें बारिश भी देगा। इस्तिग़फ़ार करो, नेमतों का नज़ूल होगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व अनहारा, और तुम्हें औलाद भी देगा, बेटे भी देगा, माल भी अता करेगा, और तुम्हारे लिए बागात और नहरें अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी हैं। ये नेमतें तुम्हारे लिए हैं, दुनिया इंसान के लिए बनी है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, हमारे लिए आजमाइश है। ये नेमतें हमारे लिए हैं, लेकिन मिलेंगी किसको? सआदत की जिंदगी किसको मिलेगी? खुशबख्ती किसको मिलेगी? जो अल्लाह का फर्माबरदार बन जाता है, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी हदीस है सही मुस्लिम में, फरमाया या अय्युहन्नासु तूबू इलल्लाहि वस्तगफिरू, ऐ लोगो अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। फ़इन्नी अतूबु इलल्लाहि फिल यौमि मिअत मर्रा, फरमाया मैं एक दिन में 100 मरतबा माफी मांगता हूँ, 100 मरतबा तौबा करता हूँ। और एक रवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ अक्सर मिन 70 मर्रा, एक दिन में 70 से ज्यादा माफी मांग, 70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह ताला से माफी और तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उम्मत के लिए ये दर्स था कि तुम लोग भी गुनाहों की दलदल में फंस जाते हो, गुनाह करते हो, फिर गुनाहों पे डटे नहीं रहना, इसरार नहीं करना, हमेशा गुनाहों में नहीं रहना, बल्कि अल्लाह से माफी मांग देना। गुनाह का सरजद हो जाना ये इंसान की कमी है, अल्लाह ने इंसान में ये रखा है कि उससे गुनाह हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, कि बनी आदम, आदम की जितनी भी औलाद है वो खताकार है, उनसे गलती हो जाती है, लेकिन उन गलती करने वालों में से, उन गुनाहगारों में से बेहतरीन इंसान वो है जो तौबा करने वाला है, जो रुजू करने वाला है। गुनाह हो गया, अल्लाह से माफी मांग ली, तौबा कर ली, तो वो बेहतरीन है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर खुश होते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, फरमाया लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही, कि जब इंसान अल्लाह से माफी मांगता है, तौबा करता है कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे दर पे सवाली बन के, फकीर बन के आ गया हूं, गुनाह कर बैठा हूं, माफ कर दे। तो मैं जब इंसान अल्लाह से रुजू करता है, तौबा करता है, अल्लाह ताला इस तरह से खुश होते हैं, फरमाया जैसे कोई आदमी अपनी सवारी लेकर, घोड़े को लेकर या ऊंट को लेकर, उस पे अपना साजो सामान लेकर सहरा में निकल जाए। सहरा में निकल गया, उसने सफर में थकावट की वजह से एक दरख्त के नीचे खुद आराम करने के लिए लेट गया, वो लेटा, उसकी आंख लग गई, और जब सो गया तो देखा उसकी सवारी वहां से गायब हो गई। अब उसका साजो सामान वहां पर है, सवारी मौजूद नहीं है। परेशान हो जाता है कि ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना यहाँ पर कोई इंसान है, ना कोई बशर है। सवारी पे सामान था, सवारी भी गायब।
सामान भी गायब हो गया, कितनी परेशानी का आलम है, परेशान हो गया वो इंसान। अल्लाह के रसूल ने ये मिसाल देकर समझाया। फरमाया फिर अचानक क्या होता है कि उसकी आंख खुलती है, जागता है, परेशानी के आलम में है, देखता है कि सवारी वापस आ जाती है। वो खुश हो जाता है कि मेरा साजो सामान सब कुछ मुझे मिल गया, और खुशी के आलम में ये कहता है, अल्लाह ताला को कहता है कि अल्लाह ताला अंत अब्दी व अना रब्बुक। उल्टा कह जाता है, कहना यह था कि रब्बुल आलमीन तू ही मेरा रब है, तूने मुझे वापस अता कर दिया ये सब कुछ, और मैं तेरा बंदा हूं। लेकिन गलती से उसने क्या कह दिया कि मैं रब हूं और तू बंदा है। खुशी के आलम में यह कह दिया, गलती से उसकी जबान से यह निकल गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस तरह यह बंदा खुश हुआ और खुशी के आलम में इसके अल्फाज भी गलत निकल गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे कहीं ज्यादा अपने उस बंदे पर खुश होते हैं कि जिससे गुनाह हो जाए फिर अल्लाह के दर पे आ जाता है, सजदा रेज़ हो जाता है, दो नफल पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, इस्तिग़फ़ार करता है कि अल्लाह ताला माफ कर दे। मैं 40 साल गुनाहों में मुलव्वस रहा, 50 साल जिंदगी गुनाहों में मुलव्वस रही, रमजान का महीना है, खत्म होने वाला है, तेरी रहमतों के नज़ूल का महीना है। तेरे नबी ने फरमाया था कि वो इंसान बदबख्त है, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए जो रमजान के महीने को पाता है, अपने गुनाहों को माफ नहीं करवा सकता। सोचिए, अपने गिरेबान में झांकिए, मैं और आप हम सोचे कि महीना गुजर गया, क्या हमने गुनाहों की माफी करवा ली? क्या हम अपने गुनाहों को माफ करवा चुके हैं? अगर नहीं करवा सके अभी भी वक्त है, रमजान गुजर जाए फिर भी वक्त है, मौत के आने तक इंसान के पास वक्त है। लेकिन तौबा में ताखीर नहीं करनी चाहिए, इसको मुअख्खर नहीं करना चाहिए। इंसान को कल का पता नहीं कि किस टाइम उसकी मौत वाक़ई हो जाए। और खालिस तौबा क्या है, इसकी कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त यह है, जो इंसान तौबा करना चाहता है, अन यकून खालिसन लिल्लाह, कि अल्लाह की रजा के लिए हो, कोई और मकसद ना हो कि मैं तौबा करूंगा मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं तौबा करूंगा नमाजें पढ़ूंगा लोग मुझे अच्छा समझेंगे, लोग मेरे साथ तावन करेंगे, ये मकसद ना हो। अल्लाह की रजा मकसद हो कि अल्लाह ताला तेरा खौफ, तुझसे डरता हूं, तेरा खौफ मेरे दिल में आ गया, मैं गुनाहों को छोड़ने का वादा करता हूं। खालिस अल्लाह के लिए तौबा करे, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है कि गुनाह को फौरी तरक कर दे, छोड़ दे। ये नहीं है कि मस्जिद में तौबा, मदरसे में तौबा, बाहर निकल के फिर वही काम। ये अल्लाह की आयात के साथ, कुरान के साथ, तौबा के साथ मजाक है। इंसान मजाक करता है कि अल्लाह माफ कर दे और फिर वही गुनाह करता है। अगर एक शख्स सूद खोरी से माफी मांगता है, कहता अल्लाह ताला माफ कर दे, और फिर सूदी कारोबार करता है, तो उस माफी की क्या हैसियत? एक आदमी बाजमात नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह से माफी मांगता है कि अल्लाह ताला बाजमात नमाज पढ़ूंगा, तौबा करता हूं, और फिर जमात में हाजिर नहीं होता, नमाज नहीं पढ़ता, तो उस तौबा की कोई हैसियत नहीं। फौरी गुनाह को छोड़ दे, गुनाह को तरक कर दे, ये दूसरी शर्त है। और तीसरी ये है कि अल्लाह से वादा करे कि मैं आइंदा गुनाहों की तरफ नहीं लौटूंगा। और चौथी शर्त यह है कि वो परेशान हो, नादिम हो, किसी के कहने पर नहीं, खुद से पशेमान हो कि रब के सामने मैं क्या जवाब दे सकूंगा, रब के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं इतनी बगावत करता रहा, इतनी नाफरमानियां करता रहा। और फिर अगर किसी इंसान का हक है तो उसका हक अदा कर दिया जाए, अगर किसी पे जुल्म किया है तो उसको अदा कर दिया जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हुकूक हैं उसकी माफी मांगी जाए। ये शराइत जब पाई जाएंगी, गुनाह को फौरी तरक कर देना, इंसान नादिम और पशेमान हो और खालिस अल्लाह के लिए तौबा करे, गुनाह को फौरी छोड़ दे, अल्लाह से वादा करे कि मैं मुस्तकबिल में कभी ये गुनाह नहीं करूंगा। इन शराइत के साथ जो खालिस तौबा करता है, तो रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उस शख्स के बारे में फरमाया इन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह के रसूल बता दीजिए उन लोगों को जो गुनाहगार हैं, जो अपनी जानों पे जुल्म करते रहे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, रहमत की तरफ आ जाओ, पलट आओ, बहुत वसी रहमत है अल्लाह ताला की। इन्नहु यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, तुम गुनाहों की माफी मांगो, गुनाहों को छोड़ने का अहद करो, वादा करो, वो गफूर है, माफ करने वाला है। और सूरह निसा में फरमाया वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, कि जो शख्स बुरा अमल करता है, कोई बुराई करता है, कोई गुनाह करता है, अपनी जान पे जुल्म कर बैठा, कोई गुनाह कर बैठा,
सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांगता है, तौबा करता है, यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, वो अल्लाह ताला को बख्शने वाला, रहम करने वाला पाएगा। और याद रखिए, अमाल में से सबसे पहले फराइज को पूरा करना जरूरी है। अगर कोई शख्स नफल काम करता है और फराइज को छोड़ देता है तो ये दोस्त नहीं है। एक मिसाल से समझ लें, सदकातुल फितर अदा करना ये फर्ज है, वाजिब है, ईद से पहले पहले अदा करना है। अगर कोई शख्स सदका फितर ईद से पहले नहीं देता और वैसे नफली तौर पे लाखों में सदका कर देता है तो क्या उसका सदकातुल फितर अदा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये फर्ज है, इसको पूरा करना जरूरी है। इसका वक्त है कि ईद की नमाज से पहले पहले सदका फितर देना। इसी तरह नमाजों में फर्जी नमाजों को कायम करना यह जरूरी है, इससे कोई माफी नहीं है। आप करोड़ों में लाखों में सदका कर दें, बेनमाज रहें, नमाज ना पढ़ें, तो ये कमी नहीं पूरी होने वाली। आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जोहर असर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, मस्जिद की महफिल में आ गए, मस्जिद को डोनेशन दे दिया, ये कमी नहीं पूरी होने वाली। पूछा जाएगा, पकड़ा जाएगा कि फराइज को तुमने क्यों नहीं अदा किया, फराइज को क्यों नहीं छोड़ा, क्यों छोड़ दिया, क्यों तर्क कर दिया। तो फर्ज पर अमल करना पहले जरूरी है, उसके बाद नवाफिल को भी अदा करना चाहिए, इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। लेकिन बाद लोग ये समझते हैं कि हम नफली तौर पर सदका कर देंगे, शायद हमारी नमाजें जितनी नहीं पढ़ी माफ हो जाएंगी। हम फर्जी रोजा नहीं रखते, कोई बात नहीं है, हम किसी महफिल में डोनेशन दे देंगे, किसी मदरसे में डोनेशन दे देंगे, हमारा ये अमल माफ हो जाएगा। माफ नहीं होने वाला। मैं आपको खरी खरी और सच्ची बातें इसलिए बताता हूं कि ताकि कोई वहमो गमान में ना रहे। डोनेशन मुझे भी अच्छा लगता है, मैं हर साल, हर महीने, बल्कि हर जुमे आपसे अपील करता हूं कि मदरसे के लिए डोनेशन दें, लेकिन इसके साथ साथ नमाजों की पाबंदी नहायत जरूरी है। नमाजें पढ़ना, जो फर्ज काम है उनको अदा करना नहायत जरूरी है। डोनेशन देने से, सदका देने से सवाब मिलेगा, लेकिन जो फराइज की कमी है वो पूरी नहीं होने वाली। एक रिवायत बयान करके बात को खत्म करता हूं। एक अराबी सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सही मुस्लिम में हदीस है, अन्ना अराबियन जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देहाती सहाबी थे, अल्लाह के रसूल के पास आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमल बता दें, सादा आदमी हो, ज्यादा लंबे अमाल मुझसे नहीं होते, कुछ ऐसा मुख्तसर से अमल बता दें कि जो अमल में करो और जन्नत में दाखिल हो। अब बड़ा अहम सवाल किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याद रख, सबसे पहला अमल क्या है? तअबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैया। इस हदीस को पल्ले बांध दीजिए, आज के जुमे का यही दर्स है। अगर यही हदीस हमें समझ आ गई तो इंशाअल्लाह हमारे लिए काफी है। फरमाया सबसे पहला अमल यह है कि अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। इबादत उसके लिए, रुकू उसके लिए, दुआ इबादत है, उससे मांगना है, तमाम इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। सबसे पहला अमल यह है कि अल्लाह की इबादत, वला तुशरिक बिही शैया, किसी को उसके साथ शरीक नहीं करना। और दूसरा अमल क्या बताया? व तुकीमस्सलाह, नमाज को कायम करना है। व तुकीमस्सलातल मक्तूबा, फर्जी नमाज को कायम करना है। जो 5 नमाजें फर्ज हैं उसमें कमी नहीं करना। तीसरा अमल बताया, व तुअद्दिज़ ज़कात, तुम्हारे ऊपर अगर ज़कात फर्ज है तो ज़कात को अदा करना है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, नमाज पढ़नी है, नमाज को नहीं छोड़ना, और फर्जी ज़कात अगर तुम्हारे ऊपर फर्ज है वो अदा करनी है। चौथा अमल बताया, व तसूम रमजान, रमजान के फर्जी रोजे रखने। कितने अमल हो गए? अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, नमाज, फर्जी नमाज की पाबंदी करनी है, छोड़ना नहीं है, ज़कात फर्ज है उसको देना है, तर्क नहीं करना, रमजान के फर्जी रोजे रखने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। उस सहाबी ने जब ये 4 अमल सुने, कहने लगा, अल्लाह के रसूल, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं इसमें ना कोई कमी करूंगा ना इससे कुछ ज्यादा करूंगा, कोई कमी नहीं करूंगा। ज़कात भी दूंगा अगर फर्ज है, रमजान के फर्जी रोजे भी रखूंगा, नमाज को नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा, ये अमाल मैं करूंगा, कोई कमी नहीं करूंगा इसमें, और इसमें कुछ इजाफा भी नहीं करूंगा। वो सहाबी चले गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, जो इंसान ये खुशी महसूस करता है कि वो किसी जन्नती इंसान को देख ले तो इस शख्स को देख ले। इन सदक, अगर ये सच बोलता है, अगर इस वादे पर पक्का रहता है, जन्नत में चला जाएगा। तो फराइज को पूरा करना जरूरी है, इनकी माफी नहीं है। अल्लाह के साथ जो शख्स किसी और को शरीक करता है जन्नत में नहीं जा सकेगा।
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کرتا ہے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے، اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ باقی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فرائض، سنت، نوافل تمام کو قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔